السلام علیکم، لائیو ود عادل شاذب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ حکومت کی جانب سے آئینی پیکج لانے کے اعلان کے بعد سے ملک بھر میں آئینی عدالت کے قیام پر ایک بحث جاری ہے۔ آئینی عدالت کا قیام ہوگا یا نہیں؟ کیا ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ آئینی عدالت کے اختیارات سپریم کورٹ سے زیادہ ہوں گے، کم ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو زبان زد عام ہیں، اس پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے آئینی ترامیم 2/3 اکثریت سے منظور کرانے کی سرتوڑ کوششوں میں ناکامی کے بعد اپنے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو کو یہ ذمہ داری اب سونپ دی ہے۔ بلاول بھٹو نے آج وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ آئینی عدالت عام ملک کی مجبوری ہے اور یہ بن کر رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء اعظم کو تخت دار پہ نہ چڑھایا جائے۔ ججز کہتے ہیں کہ ان کی مرضی، آپ نے جو 19ویں ترمیم کے مطابق ترمیم کیا اس کے مطابق بھی نہیں چلے گا۔ ہمارا رولز و مطابق، ہمارا رولز کے مطابق آپ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کریں گے۔ اور رولز کیا کہتے ہیں کہ the judiciary is of the judiciary, for the judiciary and by the judiciary۔ بلاول بھٹو نے اس سلسلے میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں کی، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، کچھ تجاویز کو مانا بھی گیا، لیکن کچھ معاملات پر اب بھی اختلافات برقرار ہیں۔ اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی آئینی ترامیم کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے بقول حکومت جو آئینی ترامیم لانا چاہتی ہے اگر یہ منظور ہو گئیں تو چیف جسٹس کے اختیارات بہت محدود ہو جائیں گے۔ آئین جو یہ چاہتے ہیں، جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا۔ تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی۔ اور آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں۔ دوسری جانب مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن آج بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ممبر کے پی جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ شریک نہ ہو سکے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس کل پھر ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے متفرق درخواست دائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے عبوری فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے 3 نظر ثانی درخواستیں پہلے ہی سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر حکم دیا گیا تھا کہ وہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ اس فیصلے پر گزشتہ روز لائیو ود عادل شاذب میں گفتگو کرتے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کیا کہنا تھا وہ سنیے۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس تقریباً ملک میں کریٹ ہونے جا رہے ہیں لغاری صاحب۔ جی عادل بھائی، بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 30-32% سے 9% پہ آ چکی ہو، انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہو، پوری دنیا کی اکنامک پاورز پاکستان کے اکنامک ریفارمز کے پروگرام کی تعریف کر رہے ہوں، آپ 3 سال کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر انٹر ہونے کی ورج کے اوپر ہوں، آپ کی بزنسز فلرش کرنا ہو رہی ہوں، ایکسپورٹس بڑھی ہو، پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں سپیس مل رہی ہو، وہاں ایک آئینی بحران کریٹ کرنے کی کوشش پتہ نہیں کس نے کی، کس نے نہیں ہوئی، لیکن اس فیصلے نے وہ حالات ضرور پیدا کر لیے جس کے اندر مزید اسی سپریم کورٹ کے فل کورٹ سے اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی نے مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا 26 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے اصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی، اس لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے، مگر پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی۔ اختلافی نوٹ کے مطابق 3 جون سے کیس چل رہا تھا، پی ٹی آئی نے 26 جون تک کوئی درخواست نہیں دی۔ 26 جون کو پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست آئی، بیرسٹر گور نے جاری کیس میں معاونت کی درخواست دی، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈکلیریشن کی استدعا نہیں کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریر کیا کہ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر
7 रोज में फैसला करे और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। आपको बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू कर दे। इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर पीटीआई की वकील सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, अभी अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ें। इस दौरान हामिद खान ने कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आप बराए मेहरबानी अपनी नशिस्त पर बैठे रहें, आपको बाद में सुनेंगे। हामिद खान कमरे अदालत से चले गए। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 4 ट्राइब्यूनल्स कायम रखे, बाकी 4 इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तिफसार किया कि इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मामला तय पा गए हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, जी बिल्कुल, क्योंकि कानून बदल गया था, इसलिए अब नए 4 ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है, जो बढ़ नहीं सकती। स्टे ऑर्डर वाले केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जो मामलात अदालत के नहीं हैं इन्हें आपस में हल करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स दोनों इदारों के लिए इज्जत है। ट्राइब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ट्राइब्यूनल की तादाद के अनुसार केसेस पर है, केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करें। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसिफाना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि हाई कोर्ट के किस कानून के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वक्त कम था, इंतखाबात सर पर थे, रिटायर्ड जजेस की तैनाती में हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की तैनाती चैलेंज हुई है तो यहां बात ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर हाई कोर्ट जजेस के नाम दे दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार करने पर ठोस वजूहात बतानी चाहिए। सलमान अकरम राजा की बार बार बीच जुमले में बोलने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप बार बार मेरे बात करने के बीच ना बोलें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद करवाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला खत्म नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से कहा, क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल के लिए चाहते हैं? जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी तो मजीद क्या कर सकते हैं? आप चाहते हैं ट्राइब्यूनल का मामला खत्म ही ना हो? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर यह केस खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं, लेकिन हाई कोर्ट पाबंद है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट की मुशावरत जरूरी है। अदालती फैसलों की बजाय सिर्फ आइन पर अमल दरामद हो तो पूरे मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल का कयाम यकीनी बनाए। हाई कोर्ट अगर इलेक्टोरल काम शुरू कर देगा तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, कोई तनाज़ा आएगा तो हाई कोर्ट हल कर देगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जज शाइक उस्मानी, जबकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज हसान एडवोकेट साहब भी। आगाज करेंगे शाइक उस्मानी साहब से। शाइक उस्मानी साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आ चुका है, इसके बाद क्या आपको कोई आईनी बहरान पैदा होता नजर आ रहा है? जी, बहुत सख्त बहरान पैदा होगा जब तक कि इस जजमेंट को सस्पेंड न किया जाए, क्योंकि अगर ये जजमेंट सस्पेंड नहीं होती तो ये फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और इसको सस्पेंड करने के लिए आपको रिव्यू पिटिशन में जाना पड़ेगा, जो है ऑलरेडी मौजूद सुप्रीम कोर्ट के पास। रिव्यू पिटिशन में जा करके आप जो बेंच से रिक्वेस्ट करें कि जजमेंट को सस्पेंड कर दें, उसके बाद फिर रिव्यू पिटिशन सुने और जितनी ऑब्जेक्शन है वो सब लेके आए। लेकिन जब तक कि वो नहीं होता तब तक ये जजमेंट फाइनल है, और अगर इस पे एक्ट ना किया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू होंगी। और आप ये भी याद रखें, आर्टिकल 190 कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को मनवाने के लिए वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कॉल कर सकता है।
हाफिज साहब, दो पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने शाइख उस्मानी साहब को सुना, साबिक चीफ जस्टिस, बड़े मोअज़्ज़ज़, बड़े सीनियर लॉयल फ्रेटर्निटी का उनका है। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब ये जजमेंट या तो सस्पेंड होगी, नज़रसानी में जाएंगे, या इस पर अमल दरामद होगा। हुकूमत कह रही है नहीं जी, कर ही नहीं सकते। आदिल, एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी अगर ऑर्डर करती है और उस ऑर्डर नहीं किया जाता, उसको अमल दरामद होना चाहिए, और अगर अमल दरामद नहीं होता तो उसका एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस 190 का, और अगर आप नहीं होता तो आप आर्टिकल 204 के नीचे जा सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास मामला है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, वो बात है जो आपकी नॉर्मल की है। अब इसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक इनकन्क्लूसिव फाइंडिंग है या जजमेंट है 12 जुलाई को आई। उस 12 जुलाई के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि हमें अगर क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो वो हमारे पास तशरीफ़ ले आए, और यही उन्होंने पीटीआई को ऑफ़र किया। ठीक है। अब पीटीआई जो है उसने भी सीएम में मूव कर दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मूव कर दी, और वो सारे पॉइंट्स जो पार्शियल कंप्लायंस के अंदर रुकावट रखते थे बकौल इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने 39 की हद तक जो है वो नोटिफाई कर दिया, और 41 की हद तक जो है वो उन्होंने पॉइंट रेज किए। आर्टिकल 51 को, आर्टिकल 106 को, सेक्शन 104 को, उन सारों को उन्होंने रेज कर दी। अब जब उन्होंने वो पॉइंट रेज किए, उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन जो है वो पास नहीं की थी। अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि जब फौरी तौर के ऊपर रिव्यू भी फाइल कर दिए गए हैं, या उन रिव्यू को लगा लेती, या उसके बाद ये है कि जो आपके पास क्लैरिफिकेशंस आई थी उसको ओपन कोर्ट के अंदर सुन के एक फैसला कर देती, और इन सारी कन्फ्यूजन जो थी क्लैरिफिकेशंस उसका जवाब दे देती। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसको ले के सुप्रीम कोर्ट बैठी रही, और इस दौरान पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन की, और उस लेजिस्लेशन को उन्होंने इफेक्ट दिया 2017 से, और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की सूरत आपके पास सेक्शन 66 या सेक्शन 104 की मौजूदगी के अंदर है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई जजमेंट आई है या आएगी वो भी इफेक्ट होगी। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अगर आप जाके इसको क्लियर करेंगे विद द पार्टी सर्टिफिकेट या एफिलिएशन तो आप इंडिपेंडेंट है, नहीं तो आप आगे जाएंगे। अब सिचुएशन कैच 22 जो है आदि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैच 22 पर बात करेंगे हाफिज साहब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आईनी मामलात पर बात हो रही है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हाफिज हसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, कैच 22। अच्छा, अब आदिल, कैच 22 की सिचुएशन ये है कि एक तरफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक लेजिस्लेशन है जो इन फील्ड है, लॉ ऑफ द लैंड है, और उसको ना पाकिस्तान की किसी अदालत ने सस्पेंड की, ना उसको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। दूसरी सिचुएशन ये है कि उस लेजिस्लेशन के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की एक क्लैरिफिकेशन 14 को आती है, और 23 सितंबर 2024 को वो अपनी एक डिटेल रीजनिंग उसके अंदर दे देते हैं। अब उसके अंदर ये है कि अगर मैक्सिमम अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी एप्लीकेशन पीटीआई फाइल करेगी, तो अगर उसके अंदर आर्टिकल 204 के नीचे अगर नोटिस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक लीगल एक्सक्यूज़ अवेलेबल है। वो ये कहेगा कि जी एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो हमारे सामने है, और उसके होते हुए हमें आप एडवाइस करें कि हम आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो डायरेक्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर अगर आप नहीं जाते तो उसके लिए एक लीगल स्ट्रैटेजी के तौर पर यह लीगल ऑप्शन है। लेकिन आदिल, उससे आगे हमें चले जाना चाहिए। वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पार्लियामेंट है, रिव्यू ऑलरेडी पेंडिंग है। अब जो हमारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है उसको इमीडिएटली इस केस को लगाना चाहिए। उस केस को लगाने के अंदर फर्स्ट हियरिंग के अंदर, चूंकि इसके अंदर 5 व्यूज आ गए, अब जो जस्टिस याहिया अफरीदी का व्यू आया है, मेरा ख्याल ये है कि सबसे साइब व्यू जो है वो यही है कि बेहतर यही था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर उन्होंने उस जजमेंट के अंदर ये कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट को रिमांड कर देना चाहिए था, तो अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट रिमांड कर देती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उस 22 दिसंबर की सिचुएशन पे चली जाती, तो उसके अंदर ना रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आना था, ना सुप्रीम कोर्ट को 2 माह के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। रिव्यू लगना चाहिए, रिव्यू लगना चाहिए, फर्स्ट जजमेंट सस्पेंड होनी चाहिए, और अगले 7 दिन के अंदर इसका फैसला होना चाहिए। और उन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए, चाहे क्या पाकिस्तान का आर्टिकल 17 अकेला पढ़ा जाएगा, या आर्टिकल 51 के मिला के पढ़ा जाएगा, या आर्टिकल 106 है, या सेक्शन 209(10) है, और क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 175(2) से बाहर निकल सकती है, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के अंदर अनलिमिटेड पावर रखती है। इन सारे पॉइंट
पॉइंट्स को इंक्लूडमेंट को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो 13 मेंबर्स बेंच बैठे और एक एक का फैसला करके और बजाय शॉर्ट ऑर्डर के डिटेल रिव्यू ऑर्डर करे ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन क्लियर हो। मैं शाइक उस्मानी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अब हुक्म जारी कर दिया कि मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करे, जबकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई को अपनी फहरिस्त से निकाल दिया और स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या रास्ता है, क्या करे? सुप्रीम कोर्ट जाए, पार्लियामेंट के पास जाए, होगा क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी उसने रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में जी, वो तो मौजूद है, तो वो जाके अपनी जो रिव्यू पिटीशन को परस्यू करें, कल जाकर के उसको परस्यू करें और उसमें स्टे ले लें। इस जो फुल जजमेंट आई है, फुल जजमेंट जो उनके पास आई, डिटेल जजमेंट, उसको सस्पेंड करवा लें। जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये ध्यान में रखें कि अगर वो जजमेंट सस्पेंड नहीं होगी तो बहुत से लोग जो हैं उनके करियर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बिहेव कर रही है सुप्रीम कोर्ट, उससे तो जाहिर ही होता है कि काफी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये जो आपने बड़ी अहम यहाँ पे बात की, जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ जो ख़त लिखा और जजेस कमेटी पर एतराज़ात उठा दिए हैं, इससे तो ऐसा तासुर जा रहा है कि बिल्कुल एक वाज़ेह डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट में। तकसीम की तो बात है ही नहीं ना, यहाँ पर तो बात यह है कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जाएंगी और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस हर एक को जाएंगी जिसने कि उसमें रुकावट पैदा की, इलेक्शन कमीशन, फेडरल गवर्नमेंट, जो भी हो। और आप देखेंगे फिर द हेड विल रोल। जिस तरह से जो मूड अभी सुप्रीम कोर्ट के मैं देख रहा हूँ वो कुछ ऐसा ही है, इसको करेक्शन करने की जरूरत है। अभी तक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये इस चीज का एहसास नहीं हुआ। तो सर, आईनी अदालतों पर आपकी क्या राय है, उनका क़याम जरूरी है, नहीं जरूरी? आईनी अदालत का जो मामला है वो एक अलग चीज है, उसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपके पास मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ ही नहीं सकती। हालांकि आईनी जो कोर्ट्स हैं उनका नाफिज करना, उनका बनाना बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। जिस तरह से हरकतें होती हैं हमारे यहाँ, सियासतदान आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो जरूरी है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि मेजोरिटी नहीं है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अच्छा हाफिज साहब, जो आपने रिव्यू की बात की कि जी अब फौरी रिव्यू लगना चाहिए, ये रिव्यू जो है, क्या जो नया तरमीमी एक्ट आया था सदारती प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्या ये उनके पास जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कि किसने सुनना है किसने नहीं सुनना? देखिए, तो ये है कि रिव्यू जाएंगे दो। एक रिव्यू वो है कि जो 14 सितंबर का फैसला आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बगैर सुने एक फ़ैसला दिया, एक उस ऑर्डर का रिव्यू है। दूसरा ये है कि जो आपने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है 30 डेज़ के अंदर अंदर जो आर्टिकल 188 की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपने एडिशनल ग्राउंड्स लेनी है। अब ये है कि आपने इन मिनट्स को देखा होगा, जो पिछली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसके अंदर चीफ जस्टिस ने 2 केसेस का हवाला भी दिया कि एक हमें आर्टिकल 63A का केस लगाना चाहिए चूँकि वो एक रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला है या नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट को उसका फैसला करना चाहिए जो 2022 से इस मुल्क के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरा जो है वो हमें फैसला करना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि जो रिव्यू पिटीशंस आए हैं ये पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है। उसके अंदर जो लर्नड दूसरे 2 मेंबर्स थे उन्होंने कहा जी कि अभी चूँकि दूसरा इसलिए नहीं लग सकता कि चूँकि अभी हमने डिटेल रीजनिंग नहीं दी और पहला ये है कि अभी हमने छुट्टियाँ हैं तो इसलिए हम लगा नहीं सकते। अब चूंकि कॉम्पोजिशन बदल गई है, अब उस कॉम्पोजिशन के बाद एक मीटिंग जो है वो हो गई है। अब वो मीटिंग के अंदर अगर फैसला कर दिया जाता है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि आर्टिकल 63A का केस जो है वो 30 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया गया है और मेरा ख्याल ये है कि 30 सितंबर के बाद अगर 2, 4, 5 दिन के अंदर उसका फैसला आएगा, चूँकि रिव्यू के अंदर लंबी हेयरिंग नहीं आती, तो अगला काम ये होगा कि ये जो आपका रिव्यू ये है जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं या उसके बाद आपका पार्टीज़ ने किए हुए इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट उसको लगाएगी और वो 13 के 13 मेंबर्स जो हैं जो ओरिजिनल कोर्ट के अंदर थे वो सुनेंगे और उसके बाद 2, 4, 5 दिन के अंदर वो फैसला आ जाएगा। अब वो कमेटी जो है जो ऑर्डिनेंस के बाद बनी है वो कमेटी इसका फैसला करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आदिल जो आपने इशारा किया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये है कि दुनिया के 70 ममालिक से ज़्यादा मौजूद है और ये बात कहना कि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होता है वो बिल्कुल नहीं है, चूँकि आर्टिकल
آرٹیکل 175 وہ تو بات کی ڈیبیٹ ہے. ابھی تو جو شائق عثمانی صاحب نے کہا 2/3 میجورٹی ہے. دیکھیں وہ تو فنڈامنٹل کہ اگر آپ نے آرٹیکل 70 کے نیچے لیجسلیشن آرڈنری کرنی ہے تو آپ کو جو اسمبلی ہال کے اندر یا سینٹ ہال کے اندر موجود ہیں ان کی میجورٹی چاہیے. لیکن اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے بہتر یا کانسٹیٹیوشنل بننی چاہیے, اس کے اندر آرٹیکل 239 ہے اور ان 239 کے اندر دو ہی ریکوائرمنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ دونوں ہاؤس کا 2/3 میجورٹی ہو تبھی آپ کا اس کا ہوگا اور ایکٹ آف پارلیمنٹ پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بعد بنے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر صوبوں سے ریلیٹڈ ہے تو ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے لیے آپ کو اس اسمبلی کی 2/3 میجورٹی چاہیے. اور ایک قدغن آپ کی آرٹیکل 227 کے اندر ہے کہ آپ اسلامک انجنکشنز کے خلاف کو کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آرٹیکل 239 کا 5 یا 6 جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی لیجسلیشن پاکستان کے کسی بھی آرٹیکل کے اندر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کسی کا آئینی عدالت کے کسی کو سپریم کورٹ کے اندر یا کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے. اور اسی لیے ہے کہ اب تک عادل 25 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس آئی ہیں اب تک, جب سب 33 سے اب تک آئی ہیں, 25 میں سے کوئی ایک بھی امینڈمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کہا. تو یہ ہے کہ جب آپ کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ جاتی ہے اس کے اندر اس کا لیول آف ٹیسٹ جو ہے وہ آرڈنری جورسڈکشن سے زیادہ ہے. اب اگر اس کے اندر امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو جورسڈکشن ٹرانسفر فرام ون کورٹ ٹو اندر کورٹ جو ہے اس سے نہ آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ آتا ہے. مجھے حافظ صاحب یہ بات بتائیں, گورنمنٹ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے ایک آدھ منسٹر کے علاوہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ اتنا فرنٹ فٹ جس طرح بلاول ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان سارے آئینی عدالت کے معاملے کو. یہ دیکھیں عادل یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو تھی اتنے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر جس کے اندر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز یا پارلیمنٹ کا کانفرنس ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کے اندر بار بار پولیٹیکل کوسچنز کی وجہ سے اوور برڈنڈ ہو چکی ہے اور پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا چاہیے اور 2006 سے وہ ایک سی او ڈی بھی ہے اس کو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے ایکنالج کیا ہے, سائن کیا ہے, سگنیٹری ہیں. دوسرا پاکستان کے اندر جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں جو 18ویں ترمیم کے اندر ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی لیکن 19ویں ترمیم کے ذریعے واپس ٹلٹ جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف چلا گیا. پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کے لائرز کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس پروسیس کو بہتر ہونا چاہیے. جب دو چیزیں آپ کے سامنے اس بڑے کینوس کے اوپر تھیں اور اپوزیشن پارٹیز اس کا حصہ تھیں, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان بھی اسمبلی میں کہتے ہیں, پی ٹی آئی بھی اس کو کہتی ہے, تو پھر اس طریقے سے ان اسمبلیز کے اندر یا اس پروسیس کو اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو پہلے لے آتے, اس کو ڈیبیٹ کرتے, اوپن کرتے, نیرو ڈاؤن چیزوں کو کرتے اور اس کے اندر میکسیمم کنسنسس کے اوپر جاتا تو یہ امینڈمنٹس جو تھی وہ پاس ہو جانی تھی. اب یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ آ گئی ہے, اب گورنمنٹ کو اس کے اندر یا گورنمنٹ کی جو بھی لیگل ٹیم ہے اسے فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کی پارلیمنٹ اور اس کے جو ان کے ممبرز ہیں جس طرح بلاول ہیں یا مولانا فضل الرحمان آئے ہیں, یہ سارے ہیں, پاکستان کی قوم کو بتانا چاہیے کہ ہم کیوں بنا رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز عادل یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر صرف سپریم کورٹ سینٹرک نہیں آنی چاہیے. پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کے سول کورٹ تک, پرائم منسٹر آفس سے لے کے ڈی سی تک, آئی جی سے لے کے کانسٹیبل تک, اس جو سارا آپ کا سسٹم ہے, چاہے آپ کا ایڈمنسٹریٹو جسٹس ہے, گورننس ہے, کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا آپ کا ریگولر جسٹس سسٹم ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ لاز ہے, ان کے متعلق ایک روڈ میپ دینا چاہیے تاکہ پاکستان کا عام آدمی یہ سمجھے کہ جینونلی پاکستان کا پولیٹیشین یا پاکستان کا پارلیمنٹ جو وہ جینون ریفارمز کے اندر جا رہا ہے. اور یہ جو چیز اس کے اندر آئی ہے ٹائمنگ بھی نکل جائے گی, آپ کے پیچھے مینڈیٹ بھی آ جائے گا اور جو 76 سال سے پاکستان کا عام آدمی سفر کر رہا ہے وہ اب مزید سفر نہیں کرے گا. ٹھیک, میں اس کو ایک ٹائم کم ہے. شائق عثمانی صاحب یہ بتائیے گا عائنی عدالتوں کے اختیارات پر جو بحث ہو رہی ہے, ایک اس میں پوائنٹ آف ویو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی اس کے قیام سے سپریم کورٹ کے اختیارات میں کوئی کمی آئے گی. اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یہ تو اس وقت ضرورت پڑے گی نا جبکہ وہ نافذ کریں گے, کوئی بل نافذ اس کو پیش کریں گے سپریم کورٹ میں. ابھی تک تو بل کوئی پیش نہیں ہوا اس کے متعلق, ابھی اس سے باتیں ہو رہی ہیں نا, اور ابھی تک تو 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ تو قبل از وقت ہے نا یہ سب چیزیں بات کرنا. خواہش ان کی یقیناً ہے اور بہت لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, میں تو ایکسیپٹ کرتا ہوں, ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بل پیش کرنا پڑے گا, اس سے بحث ہوگی اور پھر دیکھا
जाए तो क्या होगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, हाफिज हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगी। गवर्नर साहब और वज़ीर आला साहब में इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। वज़ीर आला साहिबा ने अपॉइंटमेंट भिजवा दी है समरी वाइस चांसलर्स की, गवर्नर ने वो मुस्तरद कर दिया है। मामला क्या है, ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के मामले पर गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान इख्तिलाफात ताहाल बरकरार हैं। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला की जानिब से भेजी जाने वाली वीसीज़ की तकर्रुरी की तमाम सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भिजवा दी हैं। गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ एतराज़ात उठाए। उन्होंने एतराज़ ये आयद किया कि वाइस चांसलर्स के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, दोबारा जायज़ा लिया जाए। वाइस चांसलर के पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया और वज़ीर आला की जानिब से पैनल ऑफ सिलेक्शन तो भेजी जा सकती है लेकिन सिलेक्शन नहीं भेजी जा सकती। गुज़श्ता रोज़ वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के हवाले से गवर्नर पंजाब ने अपने खदशार इन अल्फाज में किया। मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरे कलम से वही होगा जो मेरिट पे होगा। मैं बहसीयत गवर्नर मेरिट से हट के कोई काम नहीं करूंगा, चाहे वो वाइस चांसलर्स के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मैंने इधर ही रहना है। तो मैं अपने हाथ से अपने मुल्क को ख़राब नहीं कर सकता। मेरा आपसे ये वादा है, जो चीज़ें बहसीयत गवर्नर मुझे मेरे हिस्से में आई हैं, मैं अगर इनको ठीक ना कर सका, पहले तो मेरी कोशिश है मेरे हाथों से ठीक हो, लेकिन बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हर तरफ से तलवारें, नेज़े, क्लाशनकोफे हैं इस मुल्क को ठीक करने के लिए। अगर मेरे हाथ से ठीक ना हो सकी, ये मैं गारंटी देता हूँ मेरे टाइम पे ख़राब नहीं हो। जबकि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गवर्नर का काम सिर्फ समरी पर दस्तखत करना है, वो समरी वापस नहीं भेज सकते। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक इंटरव्यू में कहा कि गवर्नर पंजाब पर अब लाजिम है कि वज़ीर आला के तयशुदा नाम मंजूर करें और तालीम पर सियासत ना करें। It is binding on the governor. Let me repeat, he is nobody to reject these summaries. He is nobody to tell the chief minister, जिन्हें इस सूबे की अवाम ने मैंडेट दी है। हाँ, अगर गवर्नर साहब कहें कि आप ABC को लगा दें, VC तो हम तो नहीं लगाएंगे। इनमें से एक चूज करना चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, गवर्नर का इख्तियार नहीं है। सियासत होती रहती है बट तालीम में सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने गवर्नर की मंजूरी के बगैर 7 यूनिवर्सिटीज के VCs का तकर्रुर कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली VC पंजाब यूनिवर्सिटी होंगे, प्रोफेसर शाहिद मुनीर जो हैं वो VC इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर और प्रोफेसर आकिफ अनवर को VC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, रहीम यार खान और बहाउद्दीन जिक्रा यूनिवर्सिटी मुल्तान के VCs की तैनाती भी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वाइस चांसलर्स को 4 साल के लिए तैनात किया गया। आपको बताते चलें कि कानून के मुताबिक गवर्नर के लिए 10 रोज में समरी पर जवाब देना लाजिम है, वरना 14 रोज बाद समरी खुद ही मंजूर हो जाती है। कोई समरी मंजूर ना करनी हो तो उस पर एतराज लगाना जरूरी है। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीर पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा। उज़्मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो अभी तक हुआ वो तो हमने अब रख दिया व्यूअर्स के सामने, अब इसका वे फॉरवर्ड बताइए कि होगा क्या गवर्नर साहब और वज़ीर आला साहिबा इस पर अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहेंगे या किसी कंसेंसस पे पहुंचना भी उसकी कोई पॉसिबिलिटी है? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि कोई अपने अपने स्टैंड पे अड़ने वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो अमूरे ममलिकत है उसमें वजीर आला का क्या इख्तियार है, गवर्नर के पास क्या इख्तियारात होते हैं, ये बड़े डिस्क्राइब्ड हैं ये, और ये सबको पता भी होते हैं, पता होने भी चाहिए जो इन ओहदों पे आके बैठे। इस दफा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और काम ये हुआ, जिन पैनल्स को वो मांग रहे हैं ना, वो पैनल्स जो है वो पहले जब बना करते थे, जब अपनी मर्जी की सिलेक्शन होती थी, ये तब की बात है। अब जो एक बाकायदा कैबिनेट ने जो है अप्रूव की एक सर्च कमेटी, ताकि वो पूरी सर्च कमेटी जो है वो मेरिट के ऊपर लोगों को इंटरव्यू किए उन्होंने। इस दफा तो हमारे एजुकेशन के अंदर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बड़े वाइब्रेंट है इस हवाले से। हमारे CEOs जो लगे हैं ना एजुकेशन के अंदर, वो भी बाकायदा इम्तिहान दे के आए हैं। हमारे एक प्रोसेस को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उस सर कमेटी ने जो कैबिनेट ने बनाई थी, उसने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किए।
इंटरव्यू करके उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी जो कैबिनेट ने अप्रूव की, और अप्रूव करने के बाद वो तमाम प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो गवर्नर साहब को भेजा गया। अब गवर्नर साहब जो है वो उनको पता नहीं पुराने जमाने की कोई यादें हैं, हालांकि उनको पता होना चाहिए, वो वैसे मैंने फेडरल मिनिस्टर भी शायद रहे हैं किसी वक्त में, उनको पता है कि कैबिनेट की पावर क्या होती है और गवर्नर की जो है वो जाहिर अब तो उन्होंने पढ़ ही लिया होगा, इतने महीने हो गए कि गवर्नर का काम क्या होता है। लेकिन ये वो जो एक पुरानी तहरीक इंसाफ वाली वो जो एक शायद गवर्नरी उनके उस पे है, शायद उसमें उनको लग रहा है कि उसमें बड़ा कोई मार्जिन होता है जिससे वो समरी वापस भेज सकते हैं। वह समरी वापस भेजेंगे देन व्हाट, वो ऑटोमेटिकली उसके बाद 14 दिन बाद वो खुद ही वैसे ही जो है अप्रूव हो जाएगी। सो गवर्नर साहब जो है उनको ये एहसास करना चाहिए। लेकिन नज़मा साहब समरी अगर वो वापस भेजते हैं वो एतराज लगाकर भेजेंगे, और एतराज उन्होंने ये लगाया कि जी वज़ीर आला साहिबा जो हैं वो सिलेक्शन नहीं कर सकती, वो 3 नाम भिजवाएंगी और उसमें से फिर सिलेक्शन जो है वो गवर्नर का काम है। वो तो दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये इख्तियारात हैं। देखिए उनके दावा करने का तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, उनको शायद वो पूरी तरह प्रोसेस जो है उनको पता नहीं है, या उनको जो दफ्तर वाले उन्होंने बताया नहीं है कि जो मैंने बताने की कोशिश की है कि बाकायदा एक सर्च कमेटी इसी काम के लिए रखी गई थी। वो सर्च कमेटी 1 बंदे पे 2 बंदे पे नहीं थी, वो सर्च कमेटी 4-5 लोगों पर मुश्तमिल थी, और सर्च कमेटी ने बहुत सारे इंटरव्यूज करने के बाद, बहुत सारे रिकॉर्ड देखने के बाद जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजी कैबिनेट को दोबारा। कैबिनेट के अंदर जो है वो थॉरली उसके ऊपर डिस्कशंस हुए, और उसके बाद जो है वो उसको एक बाकायदा तरीके से अप्रूव करके जो है वो गवर्नर साहब के पास सिर्फ उसको नोटिफाई करने के लिए कहा गया। अब गवर्नर साहब जो है वो चूंकि कानून के मुताबिक चांसलर हैं, तो उनको ये लग रहा है कि उनकी लीडरी शायद कम हो जाएगी अगर वो जो है वो अपनी मर्जी के वाइस चांसलर्स ना लगा सके। तो मर्जी का काम तो मरियम नवाज की दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता। अब जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि एक इत्तेहादी हुकूमत है और हमारी कुछ रिस्ट्रेन्स हैं, हम अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी ये क्रीज से बाहर निकल के ना खेलें। अब बात यह है कि जो कल परसों उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान पे गोलाबारी की है, वो जजों की अपॉइंटमेंट पे पहुंच गया, मुझे बताएं उस पे उनका क्या इख्तियार है। ये जो है यहाँ पर उन्होंने ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की जो कोशिश की वो किस कैपेसिटी में की। सो प्रॉब्लम ये है कि शायद आई डोंट नो, ये पीपल्स पार्टी को पता करना चाहिए अपने गवर्नर साहब से कि उनका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम असल में है क्या, क्योंकि वो तो बार बार बात यही करते हैं कि मैं मेरिट इंश्योर करवाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, चाहे वो पहले बोले हैं या आप बोले। आदिल प्रॉब्लम यह है कि मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन गुजारिश यह है कि ना रिकमेंडेशंस जो हैं वो किसी की चलेंगी, ना गवर्नर साहब की चलेंगी, मेरिट चलेगा। और ये मेरिट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हर जगह पर इम्प्लीमेंट किया। जब उन्हें कहा कि सियासी पोस्टिंग्स करें, उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्हें कहा कि सियासी रिश्वत की तरह फंड्स को इस्तेमाल करें, उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो हर चीज के ऊपर वो एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस लाई है पंजाब के अंदर, और ये मैंडेट उनको पंजाब के अवाम ने दिया है। वो इस वक्त जो है वो 213 MPs जो हैं वो उनकी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, और ये इख्तियार, ये पावर उनको उस हाउस से, उनका अपने उस ओथ से मिलती है जो लोगों ने, पंजाब के लोगों ने उनको दिया है। सो इसलिए गवर्नर साहब का एक सेरेमोनियल सा रोल है, वो उस सेरेमोनियल रोल के ऊपर उनको रहना चाहिए। लेकिन उनको आजकल जैसे मैंने कहा, देखिए ना, ये तो बात चांसलर्स वाली चले, मान लेते हैं कि वो यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत से होता होगा। अब ये जजों की अपॉइंटमेंट के ऊपर उनका क्या लेना देना है? जजों की अपॉइंटमेंट के ऊपर वजीर आज़म के ऊपर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, 7 VCs की तो अपॉइंटमेंट तैनाती जो है वो जी 7 VCs तो तैनात भी हो गए हैं उस्मा साहिबा। जो मरियम नवाज साहिबा ने जो जिनके नाम भिजवाए हैं, क्या वही लोग होंगे? ये आपका फाइनल फैसला है और इस पर कोई, क्योंकि आपका दावा ये है कि आपने सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लिया और इस पर कोई तब्दीली नहीं होगी अब। देखिए, पहले तो मैं एक लाइन कंप्लीट करना चाह रही थी कि गवर्नर साहब जो वफाक के नुमाइंदे हैं, जो इलेक्ट होके नहीं आए, जिनको सिलेक्ट करके पंजाब में भेजा गया है और वो इत्तेहादी हुकूमत की वजह से मौजूद हैं, उनको जो है वो उनका कोई कंसर्न नहीं बनता कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बातें करें, और वो हमें वो वजीर आजम को बताएं कि जजों की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए या वो अपनी पॉलिसी कैसे बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने ये पूछा कि क्या होगा, वही होगा जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो है वो रूल्स और पॉलिसीज के मुताबिक होता है। कैबिनेट ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जिन नामों की अप्रूवल दी है सर्च कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद, यकीनन वही अपॉइंट होंगे। 7 हो गए हैं, बाकी इंशाल्लाह कुछ दिनों में हो जाएंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ज्वाइन करेंगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें सालाना इजलास का आगाज हो चुका है। इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में न्यूयॉर्क में मौजूद है और उनका खिताब 27 सितंबर को शेड्यूल है। शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी और IMF के हुकाम से भी मुलाकातें उनकी मुतवक्के हैं। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान फ़िलहाल कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज अमरीकी सदर जो बाइडन ने आखिरी उनका ये खिताब था अपने दौर का। आज अपने खिताब में अमरीकी सदर ने ये कहा कि दुनिया को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है, बहुत से लोग मुश्किलात जो हैं वो सह रहे हैं और वो समझते हैं कि इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर में यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का भी ऐलान किया और कहा कि अच्छी खबर ये है कि यूक्रेन जो है वो आज भी आज़ाद है। अपने खिताब में अमरीकी सदर ने गज़ा के मामले पर भी जंगबंदी को जो है वो ज़रूरी करार दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की घर वापसी की डील का वक्त अब आ चुका है। Thousands and kills, including aid workers. Too many families dislocated, crowding into tents, facing a dire humanitarian situation. Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas' grip, ease the suffering in Gaza, and end this war. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 21वीं सदी के चैलेंजेस से निपटने के लिए पैक्ट ऑफ फ्यूचर या मुस्तकबिल का मुआहदा भी मंजूर किया और इसे माहौलियाती चैलेंजेस, तनाज़ात, अदम मसावात और गुर्बत जैसे चैलेंजेस से मुअस्सर अंदाज में निपटने के लिए अहम पेशरफ्त भी करार दिया है। लेकिन इस मुआहदे में तजवीज़ किए गए 56 इक़दामात पर दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम को मुत्तफ़िक़ करना मुश्किल करार दिया जा रहा है। जनरल असम्बली में समिट ऑफ फ्यूचर के उन्वान से होने वाले इजलास से मंजूर किए गए मुआहदे में ज़िम्मेदाराना और पायदार डिजिटल मुस्तकबिल से मुतालिक नुकात भी शामिल किए गए हैं। इस पैक्ट की तैयारी से पहले रुकन ममालिक के दरमियान 9 माह तवील बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गज़ा जैसे सानेहात हल होने तक पायदार तरक्की नहीं हो सकती। Let me state at the outset that no sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास और अमरीकी सदर के खिताब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लार्ड। मार्गरेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि ये पैक्ट ऑफ फ्यूचर या मुआहदा मुस्तकबिल जो मंजूर किया गया है उसके नुकात तो हमने बता दिए 3-4, लेकिन क्या इस पर एग्रीमेंट हो जाएगा तमाम ममालिक का और इस पर अमल भी हो पाएगा? मैंने सुना कि समिट ऑफ द फ्यूचर का पैक्ट मंजूर किया गया और अमेरिका ऐसे पायदार तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे सदर बाइडेन ने उनकी किताब आज की किताब में कहा, हम एक साथ काम करना चाहते हैं। जी मार्गरेट, अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि अब तक जो UNGA की जितने भी खिताबात वगैरह हुए हैं, आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी उससे खिताब किया और उन्होंने भी मशरक़ी वुस्ता में अमन की बात की और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि कोई ना कोई जंगबंदी का मुआहदा हो और तकरीबन जितने भी खिताबात हुए हैं सब मशरक़ी वुस्ता में अमन की बात कर रहे हैं। जी, इस हफ्ते सदर बाइडेन समेत अमरीकी एहलकारी इस मामले पे बात करने का इरादा है। हम समझते हैं कि जैसे आपने कहा वक्त आ चुका है कि ये सिफारतकारी से हल करना है। अगर इसराइल अपनी शुमाली इलाके के रहवासी अपने घर वापस आना चाहे तो ज़रूरी है कि बात करके ये मसला हल हो जाए। हम समझते हैं कि भरपूर जंग से कोई भी फायदा नहीं उठाए। अच्छा मार्गरेट, दूसरे बताइएगा जो UN सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट है कि लबनान भी जंग के दहाने पर है और हम एक और गजा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और ज़्यादातर जो सरबराहान हैं जिनके खिताबात आ रहे हैं वो तकरीबन
یہی بات کریں گے. لیکن کتنا مشکل ہوگا اس امن کو اچیو کرنا اور اس جنگ بندی کو اچیو کرنا آپ کے خیال میں؟ مشکل تو ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آسان ہے، لیکن امریکی سرکار سمجھتے ہیں کہ حل کرنا ممکن ہے اور بے حد ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفارتکاری اتنی ضروری ہے کہ ہم ہر ایک علاقے کے فریقین سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ تشدد نہیں پھیلانا جائے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو 7 اکتوبر پہ اسرائیل پر ہوا، جو حماس نے کیا، وہ تو دہشت گردی تھی. اور 8 اکتوبر سے حزب اللہ نے بھی وہی اسرائیل کی شمالی سرحد سے میزائل حملہ بھی شروع کیا. اور اقوام متحدہ کے بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی ملک بھی اپنی دفاعی کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے مارگریٹ، لیکن اس میں جو مخالف پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر 1100-1200 لوگ مرے تو دوسری طرف 42-43 ہزار جو ہیں غزہ میں، اور غزہ کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ رسپانس بھی تو اسے بھی تو ہیت قرار دیا جا رہا ہے. امریکی حکومت نے صاف کہا کہ اسرائیل عام لوگوں کی ہلاک کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جائز ٹارگٹس ہے، لیکن وہ ہر ایک محنت کرنا ہے کہ وہ عام لوگوں کو محفوظ رکھے. اور اسرائیل تو ایک جمہوریت ہے اور امریکہ بھی ایک جمہوریت ہے. ہماری توقعات یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اور جب ضروری ہو تو تفتیش بھی کرنا ہے تاکہ عام لوگوں کی ہلاکت کی تعداد کم سے کم ہو. ٹھیک مارگریٹ، آخر میں بتائے گا کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کا، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ٹاپ پہ جو زیادہ ممالک متاثر ہیں اس میں پاکستان شامل ہے. تو اس پر UNGA میں کتنا کچھ پیش رفت ہوگی کہ کم از کم ایسے ممالک کی آگے بڑھ کر ہیلپ کی جائے اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ جب ہم مالیاتی امداد کے بارے میں بات کرتے ہیں، میرے خیال میں کہ 2 بڑے حصے میں بانٹ سکتے ہیں، جن میں سے انسانی امداد. اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، قدرتی آفات ہو، تو اس کے بارے میں امریکہ کچھ خاص بات چیت کر رہے ہیں اس جنرل اسمبلی میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی پوری ضرورتیں صرف اقوام متحدہ کے دیشوں کے حکومت پورا نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نجی شعبے سے بھی امداد لینا چاہتے ہیں. اور پارٹنرشپس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ ہم پائیدار ترقی کے بارے میں، مالیاتی کی ضرورتیں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. اور اس معاملے پہ امریکہ خاص پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کے انیشیٹو کے تحت کام کر رہے ہیں. آج لوبیٹو کوریڈور کے بارے میں بات ہو جائے گا، جس میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت بھی اپنے شہریوں کے لیے اچھی سطر کی بنیادی ڈھانچے فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ویسے بنیادی ڈھانچے بنانے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. ایسی پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کے آسپیسز پہ امریکہ دنیا کو اور آپشن دینا چاہتے ہیں. ٹھیک، امریکی محکمہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان مارگریٹ میکلارڈ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.